बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। वेलकम टू योर न्यू क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिसेस फौजिया सलीम। As you know that your e-learning classes has been started. Dear students, you are very well aware of the preventing situation created due to COVID, which of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable condition did not allow to materialize program and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. Okay, that's why we are going to on the online classes which called your e-learning classes. Okay, according to the syllabus we have to start our month of August, and according to the month of August I will show your first lesson and your new book. This is your new book for book of English for class 9. Okay, and according to your syllabus we have to start our lesson 1 in reading comprehension, last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एज ए मुस्लिम. एज यू नो वेरी वेल, इट इज़ you know very well about it that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the perfect man of the world. And now I am going to reading this text, and after then I will explain you. Okay, reading text the last sermon of Holy Prophet. sermon means खुतबा, जो नमाज से और ईदैन की नमाज से पहले और हज से पहले जो दिया जाता है, खुतबा दिया जाता है, उसे सरमन कहा जाता है. Our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophet. Holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. Most of them refused to accept Islam. They thought that he was against their gods and their ancestors. They opposed this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometers 200 miles north of Makkah. In this paragraph, you can learn that हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिस पे हमारा ईमान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD में मक्का में, जो कि सऊदी अरब में वाक़ है, वहाँ पैदा हुए और एक रिस्पेक्टेड फैमिली यानी एक बाइज़्ज़त घराने में पैदा हुए
जिसका नाम कुरैश था। कुरैश जो है वो आइडल्स कहते हैं बुतों की पूजा करते थे और अपने झूठे खुदाओं को मानते थे, एक अल्लाह को नहीं मानते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को कहा कि वो अपने झूठे खुदाओं की इबादत ना करें और उन्होंने फरमाया कि आप एक अल्लाह की इबादत करें जो कि सच्चा है और इस्लाम को कबूल करें। लेकिन बहुत से जो उसमें थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कुरैश के बहुत से जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए और आपको और आपके जो एंसेस्टर्स यानी आपके आबा और अजदाद थे, उनका मानना ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके खुदाओं और उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके आबा व अजदाद के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिलीवर्स यानी अपने साथियों को माइग्रेट टू यसरब यानी यसरब हिजरत करने का हुक्म दिया। माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। और यसरब जो कि ये शहर 320 किलोमीटर और 200 मील नॉर्थ ऑफ मक्का में वाक़ था। But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. Hence, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yasrib, he also decided to migrate there. After 8 days journey, he reached the outskirts of Yasrib on 28th June 622, but he did not enter the city directly. He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. अच्छा, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ हो गए। कुछ लोग जो थे मतलब कुछ टाइम गुजरने के बाद कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुरैश जो है वो ये देखकर और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए यानी और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी ज़िंदगी पर हमला करना शुरू किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब से अच्छा जवाब मिला, जो अपने बिलीवर्स को वो वहाँ भेज चुके थे, तो उन्होंने भी इरादा किया कि वो यहाँ से हिजरत कर जाएंगे मदीने को। तो आप जो है 8 दिन का सफ़र करके 8 दिन के सफ़र की जर्नी थी, सफ़र की हिजरत थी जो आपने की और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो यसरब नहीं पहुँचे, बल्कि आप उससे थोड़ा पहले कुबा नाम की प्लेस पे आपने स्टे किया और वहाँ पे आपने एक मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद कुबा कहते हैं। On 2nd July 622, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. This event is known as Hijra and marks the beginning of Islamic calendar. Yasrib was soon renamed Madinatun Nabi, literally city of the Prophet. But Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. 2nd July 622 को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटी में दाखिल हुए यानी शहर में दाखिल हुए। दिस इवेंट इज़ नोन एज हिजरा, इस मौके को हिजरा कहा जाता है, जो कि जिससे इस्लामी कैलेंडर जो है वो शुरू होता है। जो आज हम इस्लामी तारीख़ को फॉलो करते हैं, जिसे हम कहते हैं हिजरी कैलेंडर, इस्लामी तारीख़ें जो हमारी चल रही हैं वो हम इसी हिजरत के बाद से हम उसे इस इवेंट के बाद से ही हम उसे कंसीडर करते हैं। बहुत जल्द आप यसरब पहुंच गए और इस यसरब जो इसका पुराना नाम है
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इसे मदीनतुन नबी का नाम दिया गया। मदीना का मतलब है शहर और उन नबी यानी नबी का, तो इसका मतलब बना मदीनतुन नबी का मतलब है नबी का शहर। आगे चलकर उन नबी का लफ्ज़ जो है वो ड्रॉप हो गया और सिर्फ मदीना रह गया और मदीना का मतलब है शहर। At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had four broad groups of people. There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई मदीना में तो वहाँ पे पहले से कुछ ग्रुप जो है, कुछ लोगों के ग्रोह वहाँ पे या कबाइल आप कह लें कि वो आबाद थे, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे और इसके अलावा मदीना में वो लोग थे जो मक्का से हिजरत करके यहाँ आए थे। और इसके अलावा वहाँ पे औस और खज़रज नाम के दो कबीले थे और जो कि सही मानों में मुसलमान थे। और इसके अलावा हाइपोक्रेट्स थे जो कि बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन दिल से वो मुसलमान नहीं थे, असल में वो मुसलमान नहीं थे। और इसके अलावा यहूदी वहाँ पे आबाद थे जो बहुत बड़ी तादाद में थे। In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. He succeeded in drawing up a Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative development that further consolidated the Islamic community in Medina. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये तमाम लोग आपस में अमन के साथ रहें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले पर बात करने के लिए तमाम ग्रोहों के रहनुमा शख्सियात को बुलाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मुख्तलिफ़ ग्रोह जो हैं इन तमाम ग्रोहों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, हमांगी हो और मदीना शहर की हिफाजत के लिए एक मुआहदा कर लें जिस पे सबका इत्तेफाक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने का आइन तश्कील देने में कामयाब हो गए। आइन वो चीज़ होती है जिसमें सारे रूल्स मेंशन होते हैं, उसे सबको फॉलो करना होता है, जो मीसाक़ मदीना के नाम से जाना जाता है, जिसके ज़रिए मदीना में रहने वाले तमाम समाजी ग्रोहों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग कायम करना मकसद था। और उसने मुसलमानों और मदीना के यहूदियों के हुकूक़ और फ़राइज़ का तयन किया, मज़हब की आज़ादी दी
और बैरूनी दुश्मनों से इत्तेहाद करने की ममानियत कर दी। और उसमें इसका ऐलान भी किया गया कि हर तनाज़ा या हर झगड़ा जो है वो तस्फिये के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाएगा। बाद के सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब कबाइल को इस्लाम के नीचे मुत्तहिद कर दिया उनको, और समाजी और मजहबी इस्लाहात की और इंतज़ामी तब्दीलियाँ की, जिसने मदीना में इस्लामी माशरे को मुस्तहकम कर दिया। इन द ईयर 10th AH Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook this farewell pilgrimage to Makkah. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims, for it was first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat on the 9th of 9th of Zulhajj, 10th AH, 6th March 632. There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. 10 हिजरी, इसमें आप देखें कि आपको इस्लामी तारीख के साथ साथ आपको इंग्लिश कैलेंडर की डेट्स भी बताई जा रही हैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। 10 हिजरी में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज्जतुल विदा अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक ही हज किया था, ठीक है, और वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी हज था। ये हज्जतुल विदा मुसलमानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट जो वाक़यात हैं उनमें से ये एक समझा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। इसके अलावा ये वो मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया कि हज कैसे अदा किया जाता है। इसके अलावा इसी हज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल अरफात, यानी जबल अरबी में कहते हैं पहाड़ को, तो अरफात की पहाड़ी की उराना वैली में 9 ज़िलहज 10 हिजरी 6 मार्च 632 हिजरी ईस्वी को अपना आखिरी खुतबा दिया। अपने आखिरी हज के दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आखिरी खुतबा दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लातादाद मुसलमान मौजूद थे। डिलीवरिंग हिज लास्ट सरमन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज्ड एंड थैंक्ड अल्लाह and then said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present there today. अपने आखिरी खुतबे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान की और उसका शुक्र अदा किया, और फिर कहा, ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं दोबारा तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। इसलिए जो मैं तुमसे कह रहा हूँ गौर से सुनो और इन अल्फाज को उन लोगों तक पहुँचाओ जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। Then amongst other things he gave the following message: O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. फिर दूसरी चीज़ों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंदरज झेल पैगामात
जो है वो मुसलमानों को दिए। ए लोगों, हर मुसलमान की ज़िंदगी और मिल्कियत को एक मुक़द्दस अमानत समझना। तुम्हारे पास रखी गई अमानतों को उनके हकदार मालिकों को वापस करना। किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ ताकि कोई तुम्हें तकलीफ़ ना पहुंचाए। Beware of Shaitan for the safety of your religion. He has lost all hope that he will never be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. अपने दीन की सलामती के लिए शैतान से ख़बरदार रहना। वो मायूस हो चुका है कि वो कभी भी तुमको बड़े मामलात में गुमराह कर सकेगा, मगर छोटे मामलात में इसकी पैरवी करने से बचना। All mankind is from Adam and Adam was created from dust. The noblest of you in Allah's sight is the most good-fearing, God-fearing. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does non-Arab have any superiority over an Arab. A white has non-superiority over a black, nor does black have any superiority over a white, except by piety and good action. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। एक अरब को गैर अरब पर कोई बरतरी हासिल नहीं और ना ही एक गैर अरब को अरब पर कोई बरतरी हासिल है। गोरे को काले पर कोई बरतरी हासिल नहीं है और ना ही काले को गोरे पर कोई बरतरी हासिल है, सिवाय तक़वा और नेक अमाल के। इसलिए मैं खून और दौलत की बुनियाद पर कायम किए गए अज़मत और बरतरी के सारे झूठे दावों को अपने पाँव तले रौंदता हूँ। अच्छा, यहाँ काले और गोरे का जो फ़र्क आपको बताया है वो इसलिए है कि आपको पता है कि अरब में उस वक्त हबशी लोग भी हुआ करते थे। अरब जो हैं वो गोरे थे और हबशी जो हैं वो काले होते थे। तो गोरे और काले की वजह से कोई छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि अपने तक़वा, अपने आमाल की वजह से है। एवरी मुस्लिम इज़ आ ब्रदर ऑफ एवरी मुस्लिम एंड दैट द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट one brotherhood. Nothing shall be legitimated to Muslim which belongs to fellow Muslim unless it was given freely and willingly. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." The message conveyed in this sermon are for all times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice, and meritocracy will be the guiding principle. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और ये कि मुसलमान आपस में एक भाईचारा बनाते हैं। किसी मुसलमान पर वो चीज़ें जायज़ नहीं जो किसी दूसरे मुसलमान की मिल्कियत हैं, जब तक कि वो उसे आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से ना दे दे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा ये कहते हुए मुकम्मल किया, ए अल्लाह मेरा गवाह रहना, ए अल्लाह मेरा गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। इस खुतबे में जो पैगाम दिए गए हैं वो तमाम ज़मानों के लिए हैं। अगर मुसलमान इन पैगामात पर अमल पैरा होते हैं तो नतीजतन एक इंसाफ वाला और बराबरी वाला माशरा जो है वो कायम होगा, जिसमें ईमानदारी, अदल और इख्तियारात अहल लोगों के पास होना रहनुमा उसूल होंगे। Here is your class has been completed. Okay, we will meet in our next class inshallah. Till then, Allah Hafiz and take care.